Assalamu alaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I have discussed that how the teacher of French means M. Hamel felt when at the last day of his class, at the last day of in his school. So and how French felt when he saw his teacher like that. So today I am going to continue the chapter, and before that I am going to discuss the question answer of think as you read. The first question is, what was Franz expected to be prepared with for school that day? मीन्स कि उस दिन यानी कि ये जो लास्ट दिन था तो फ्रेंड्स को कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करके जानी थी, तो कौन सी चीज़ें तो फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड participants with him for school that day. Second question is, what did Franz notice that was unusual about the school that day? यानी इस लास्ट दिन के दिन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो फ्रेंड्स ने अनयूजुअल फ्रेंड्स को लगी. तो स्टूडेंट्स कौन सी चीज़ें थी, तो पहला कि जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा, when he reached at the school was stand still, not a single voice come out from the class. Every day when friends reach at school, the noise of children came out from the class. The noise of the ruler that tapped by the teacher on the table was come out from the class, and the lecture of the teacher. So all these things regularly happen in the school, but that day not a single voice came out from the class, and school was like that it was the Sunday at that day. And when friends entered in the class, everyone was quiet, not a single student speak anything. He sat down on his place on his bench, and he noticed that his teacher wear a very good clothes, new clothes, and at the at the last benches of the on the last benches of the class there were some old age people of the village were sitting. So all these things were strange from every day. तो ये सभी चीज़ें अनयूजुअल थी जो फ्रेंड्स ने नोटिस की थी. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, तो बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, तो व्हाट हैड बीन पुट up on the bulletin board. From the last 2 years continuously every bad news for French, every bad news for France, and especially Lauren and Alsec, every bad news for them came out from this bulletin board. And today there was a order from the German government that was put on the bulletin board. ये मैंने अपने वर्ड में बताया है, आप कम्प्लीटली वीडियो में देख के कंप्लीट आंसर लिख लेना. तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 3 थिंक एज यू रीड के क्वेश्चन एंड आंसर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए. अब हमारा जो चैप्टर है वो मैं कंटिन्यू करूँगी. तो let's start. Only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. यानी कि जो डेस्क और बेंचेस थे स्टूडेंट्स वो वर्न स्मूथ हो गई थी, यानी कि घिस के एकदम स्मूथ हो गई थी. कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली हम यूज़ करते हैं तो कैसी हो जाती है, वर्न स्मूथ, यानी हैड वर्न आउट बिकम स्मूथ ड्यू टू ओवर यूज़, यानी कि कंटिन्यूसली यूज़ करने की वजह से उसका जो लकड़ा था एकदम घिस गया था, तो वो एकदम स्मूथ हो गई थी. और वहाँ पे जो वेलनट ट्री था वो ट्री बहुत ही बड़ा हो गया था, जो टीचर ने वहाँ पे प्लांट किया था गार्डन में. आज के टाइम में वो बहुत टॉलर था, बहुत ऊंचा हो गया था. और दूसरा जो ट्री था होप वाइन, वो भी टीचर ने अपने हाथों से प्लांट किया था. तो वो अब विंडो से निकल के
स्कूल की छत तक पहुंच गया था, यानी इतना बड़ा वो ट्री हो गया था। और ट्विंड यानी कि ट्विस्टेड, यानी कि ट्विस्ट होना, मुड़ जाना, तो विंडो से रूफ तक वो मुड़ गया था। How it must have broken his heart to leave it all, poor man. To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. तो ये सब चीज़ें देख के फ्रेंड्स ये सोच रहा था कि अब मेरे टीचर की हालत कैसी होगी कि ये सब चीज़ें उन्हें अब छोड़ के जानी है। और उसी समय टीचर की जो सिस्टर थी, टीचर की जो बहन थी, उसकी आवाज़ आती है कि वो क्लासरूम में आती है और कहती है, मतलब क्लासरूम वहाँ से जाती है एक रूम में, वो अपने ट्रंक्स यानी अपना सामान, अपना लगेज पैक कर रही होती, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे यानी कि आज जो डे है उससे नेक्स्ट डे उन्हें ये देश छोड़ के जाना होता है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे पी बाबू। यानी कि अब आगे फ्रेंड्स कहता है कि अब मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं हर एक लेसन अच्छे से, वेरी लास्ट लेसन है तो अच्छे से मैं पढ़ाई करूं। अब राइटिंग का उनका जो लेसन था वो फिनिश हो गया पीरियड, अब हिस्ट्री का पीरियड था। तो वन बाय वन ये सभी चीज़ें वो क्या कर रहा था, सीख रहा था। तो उसके बाद वो क्या कह रहा था, फिर अब जब टीचर चले जाएंगे तो हम तो फिर से कैसे हो जाएंगे छोटे बेबीज़ की तरह। यानी कि जब छोटा बेबी जब बोलना सीखता है तो पहले कैसे धीरे धीरे एक एक वर्ड बोलता है, बा बेबी ऐसे बोलता है, वो पूरा सेंटेंस नहीं बोलना सीखता है। तो अब जैसे कि आज हम सब कुछ अपना फ्रेंच में सीख जाएंगे, अब नेक्स्ट डे से जर्मन लैंग्वेज सीखनी है तो फिर से फर्स्ट लेटर से हमें स्टार्ट करना है बेबी की तरह। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his printer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion. Tremble यानी कि शेक करना यानी ध्रुजना। तो आगे फ्रेंड्स क्या देखता है, एक ओल्ड हॉसर था, वो पर्सन जो बैठा हुआ था पीछे, वो अपने तो ओल्ड हॉसर जो था उसके एक हाथ में उसके चश्मे थे और उसने अपने दोनों हाथों से प्रिंटर पकड़ा हुआ था और वो जब बोलने की कोशिश कर रहा था तो वो रो रहा था और रोने की वजह से, इमोशनल होने की वजह से उसकी जो आवाज़ थी वो ध्रुज रही थी, कम्प्लीटली वो बोल नहीं पा रहा था। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और उसे ऐसा बोलते हुए देखकर, उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर हम सबको बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो एक तरफ उन्हें हंसी भी आ रही थी, उन्हें हंसने का मन कर रहा था, बट एक तरफ रोने का भी मन कर रहा था। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। और फिर से मुझे क्या याद आ रहा था कि ये हमारा लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और उनके बाहर एक चर्च था, तो चर्च के घड़ी में 12 बजे उसकी अलार्म बजा। देन द एंगेलस यानी कि प्रेयर सॉन्ग इन द चर्च के अंदर जो प्रेयर सॉन्ग होता है उसे एंगेलस कहते हैं। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। ट्रम्पेट्स यानी ट्रम्पेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़। तो एक तरफ 12 बजे तो चर्च में प्रेयर सॉन्ग गाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ से हमें पर्शियन की जो आर्मी थी वो आर्मी आ रही थी, तो उसके लिए ट्रम्पेट्स बज रहे थे, उसकी आवाज़ हमारे क्लास में आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। और ये आवाज़ सुनकर उनके टीचर उनका चेहरा एकदम फीका पड़ गया, पेल यानी फीका पड़ गया और वो खड़े हो गए चेयर पे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। और आज तक मैंने अपने टीचर को इतना लंबा कभी नहीं देखा, ऐसा फ्रेंच कहता है। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। यानी कि उनके जो टीचर थे वो खड़े हुए और खड़े होने के बाद वो बोलने की कोशिश कर रहे थे कि माई फ्रेंड्स आई, लेकिन वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे स्टूडेंट्स कि वो उनके स्टूडेंट्स के साथ बात ही नहीं कर पा रहे थे, यानी वो अपने मुंह से कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उनके जो वर्ड थे वो चॉक्ड यानी कि उनके मुंह में
जैसे कि फंस गए थे, वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे अपने। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ chalk and bearing on with all his might he wrote as large as he could। उनसे नहीं बोला जा रहा था तो उन्होंने क्या किया, चौक लिया, ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न किया और चौक के अब जितने बड़े राइटिंग हो सकते थे उतने बड़े राइटिंग में उन्होंने लिखा। क्या लिखा, विवे ला फ्रेंच। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go। टीचर ने लिखा विवे ला फ्रेंच, फ्रांस, ये लिखा। फिर वो स्टॉप हो गए, उन्होंने अपना फेस वो सीधा किया और कोई भी सिंगल वर्ड बोलने से नहीं बोला, सिर्फ इतना ही बोला, अपने हाथ बोला ही नहीं, मतलब कि अपने हाथ से इशारा किया ऐसा क्लासरूम से बाहर जाने का कि आपका क्लास डिसमिस हो गया, यानी कि आपका पीरियड ख़त्म हो गया, अब आप लोग जा सकते हैं, ऐसा हाथ से इशारा किया, बोले नहीं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, वो कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा लेसन। लेकिन अभी जो लास्ट में ये जो थिंक एज यू रीड के क्वेश्चन है वो अभी डिस्कस करने बाकी है, और दूसरा कि ये जो लाइन है उसका मतलब भी मुझे आपको बताना है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में, जब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करूँगी तो उसके साथ ही सबसे पहले लेसन स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन आपको समझा दूँगी और इस सेंटेंस का मतलब आपको समझा दूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।